Welcome back to my channel Talk with Chop. Friends, today I am going to share an important topic with you, and you may have seen around you that so many people are there who are more talented than it is seen. They have more aptitude, they have more capability, and they have more capacity, but they have not achieved so. What is the reason? I searched and found that it is the laziness, and according to many intelligent masses, it is an attitude by which they tear down their career, they blot out their future, and they ravage their fortune by their own. No one is responsible for that. So friends, be judicious, be protective, and be assiduous. So wasting no time, let's get going with this video to get started. Today we are going to discuss the general knowledge of Odisha. Some of these questions are based on static GK and some of these are from current topics. So most of the questions are frequently asked questions of various type of exams. So just go along with me and remember, nothing to be explained here. So let's get going with this video to get started. So the first question is like this. The first question is, what is the term of the present assembly of Odisha? What is the term? It is the 16th assembly, and it will continue from 2019 to 2024. So who was the first governor of Odisha? Governor कौन थे पहला governor? It was Austin Hobak. Then which of the following is not a coastal district of Odisha? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में समुंदर को टच नहीं किया है? ये गंजाम, पुरी, गजपति, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जगत सिंहपुर, खुर्दा, and it is Gajapati district, which is not a coastal district of Odisha. Other districts are the coastal districts of Odisha. So this type of questions are generally asked, which is not a coastal district. So the next question is, which of the following district or districts has or have common borders with छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगा हुआ है? It is it मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़? कौन सा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का बॉर्डर में टच हुआ है? ये all the districts have common boundary, common border with Chhattisgarh. So the next question पे चलते हैं. So this is the map of Odisha, in which you can see the border district of Jharkhand. This is Sundargarh, this is Keonjhar, this is Mayurbhanj. These three districts have common borders with Jharkhand. And which districts have common border with West Bengal? It is West Bengal. So this is Balesar, this is Mayurbhanj. So these two districts have common border with West Bengal. And the other districts like Sundargarh, Jharsuguda, Bargarh, and this is Nuapada, this is Nabarangpur district, Koraput district, Malkangiri district. These districts have common border with Chhattisgarh. So go through this map and you can understand it better. So the next question is, districts of Odisha having common boundary with Jharkhand.
already I have told in through the map. It is Sundargarh, Keonjhar and Mayurbhanj. These three districts have common border with Jharkhand. Then which of the following districts touch the present state of Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर मिला हुआ है? मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम. These are the districts which have common border with Andhra Pradesh. Then approximate length of Budhabalam river. It is 165 km. Then which river of Odisha flows into Godavari? गोदावरी में कौन सा नदी मिला हुआ है? तो इट इज इंद्रावती. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. गांधी मीनार, जवाहर मीनार आर टू मेजर अट्रैक्शन ऑफ व्हिच प्लेस? इट इज these minars are located in Hirakud. Then the Mahanadi flows through how many districts? It is 5 districts. They are Bargarh, Sambalpur, Angul and Cuttack. Cuttack को मैंने सिटी से लिखा है और जगत सिंहपुर. So these 5 districts, through these 5 districts Mahanadi river flows. Then year of the Great Pike Mutiny. Paiko mutiny जिसे विद्रोह कहते हैं, पाइक विद्रोह. It was in 1817. Then No Onko famine was taken place in which year? कौन सी साल में No Onko famine हुआ था? It was in 1866. Then Hirakud Dam was constructed on which year? Year of construction. It is 1957 में हुआ था. Then next question पे चलते हैं. Odia was taken as the official language of Odisha in which year? Official language कब बनाया गया? It is in 1986. Then year of Madhuban fire tragedy during a religious assembly in which year? It was in 1997. There was a religious congregation. एक सभा हो रहा था तो आग लगने के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई थी. तो ये कौन सी साल में हुआ था? ये था क्वेश्चन. देन व्हिच इज नोन एज नाभिगया क्षेत्र? इट इज जाजपुर. जाजपुर इज नोन एज नाभिगया क्षेत्र. देन डुडुमा फॉल इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? दिस फॉल कहाँ पे है? कोरापुट में है. देन हु बिल्ट द कोणार्क टेम्पल? हु वाज द फाउंडर ऑफ कोणार्क टेम्पल? It was Narasimha Varman. Then number of wheels and number of horses constructed in Konark temple. कितने wheel हैं? 24 wheels हैं और 7 horses हैं. Black Pagoda refers to what? It is Konark temple is also known as Black Pagoda. Then Borunei hill is located in which district? It is in Khordha district. शंखक्षेत्र रेफर्स टू व्हिच प्लेस? किसे शंखक्षेत्र कहते हैं? पुरी. जगन्नाथ टेम्पल वाज बिल्ट बाय व्हिच किंग? इट वाज चोड़गंगा देव. देन क्वीन गुंडीचा वाज द वाइफ ऑफ व्हिच किंग? गुंडीचा रानी कौन थे? ये इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न के वाइफ थे. देन रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी. These 3 hills are said to be the best place for Buddhist learning by Huensang. Huensang ने कहा था रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी ये 3 हिल, ये 3 पहाड़ जो हैं ये बेस्ट प्लेस फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, बुद्धिस्ट शिक्षा के लिए सबसे अच्छे स्थान है. तो दिस यूनिवर्सिटी इज नॉन एज व्हाट? दिस यूनिवर्सिटी इज नॉन एज पुष्पगिरी. पुष्पगिरी के नाम से जाना जाता था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 26. खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच रिलीजन? कौन सी धर्म के साथ जुड़े हैं खंडगिरी और उदयगिरी? ये जैनिज्म के साथ, जैन धर्म. देन एनिमल मार्च डांस इज पॉपुलर डांस फ्रॉम
in which place, dance form in which place, it is South Odisha, it is in गंजाम। गंजाम में एनिमल मास्क पहन के डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, पशुओं के मास्क पहन करके वो नाचते हैं। तो क्वेश्चन है कहाँ पे ये पॉपुलर डांस है। देन हॉर्स डांस इज ए पॉपुलर डांस ऑफ कोइराबतस, सॉरी 28। हॉर्स डांस इज ए पॉपुलर डांस ऑफ कोइवर्त इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच मंथ। कोइवर्तों का ये घोड़ा नाच होता है, ये कहाँ कौन। नेक्स्ट 28 पे चलते हैं। हॉर्स डांस इज ए पॉपुलर डांस ऑफ कोइवर्त इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच मंथ। कौन सी महीने में घोड़ा का नाच होता है, जो कि कोइवर्तों का एक पॉपुलर डांस है, डांस है, ये चैत्र के महीने में। देन एनिमल मास्क डांस 31 क्वेश्चन नंबर 31 इज लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 31 is like this. In which year Mayurbhanj was annexed with Odisha? It was in 1948 after independence. Then Dhanu Yatra is a popular festival of which district? It is a popular festival of Sambalpur district. Abhinoy Chandrika, it is a book, a kitab on Odissi dance was written by which person? It is Maheshwar Mahapatra. Then Kumkum Mahanti, Priyambada Mahanti, Sonal Mansingh, संयुक्ता पाणिग्राही आर द पॉपुलर नेम इन व्हिच फील्ड। तो ये जो नाम है ये ओडिसी डांस के लिए विख्यात है, फेमस है, पॉपुलर है। देन पंकज चरण दास, मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान, रमणी रंजन बेहरा आर द 4 गुरुज ऑफ व्हिच डांस। कौन सी डांस का गुरु है ये? ओडिसी डांस का। देन 36 में चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन ऐसा है, द लास्ट नवकलेवर वाज टेकन प्लेस इन 2015। 2015 साल में लास्ट नवकलेवर हुआ था। देन इट इज हेल्ड इन एवरी हाउ मेनी ईयर्स? इन हाउ मेनी ईयर्स इट इज हैपेंड? 12 ईयर्स और 19 ईयर्स। 19 ईयर्स में भी हो सकता है, 12 में भी हो सकता है। The process of search to select the neem tree to make the new images to replace the old one is known as बनोजग यात्रा। तो ये क्या क्वेश्चन है, जिसमें जो नवकलेवर हुआ था उसमें नीम की पेड़ को ढूंढते हैं, वो सर्च करते हैं, तो इसमें न्यू आइडल बनता है। जगन्नाथ महाप्रभु का न्यू आइडल जो बनता है उसमें नीम की पेड़ को ढूंढते हैं। जो ये यात्रा जो करते हैं, वो जो ट्रैवल होता है, तो इसे क्या कहते हैं? बनोजग यात्रा। देन गरुड़ ध्वज, कपित ध्वज आर द नेम्स ऑफ द चैरियट ऑफ व्हिच डेटी। गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, कपित ध्वज भी कहते हैं। इसे ये किसकी रथ है? लॉर्ड जगन्नाथ की रथ है। तो 2 नाम है इसका, याद रखिएगा। देन दर्पदलन इज ऑल्सो नोन एज पद्मध्वज। दर्पदलन is the chariot of Subhadra. So it is known as Darpadalan or Padmadhwaja. Number of wheels used in Padmadhwaja, Taladhwaja and Nandighos are respectively what and what? कितने नंबर की उसमें व्हील? तो ये कितने पहिए होते हैं? तो ये 12, पद्मध्वज में 12 होते हैं, तालध्वज में 14 एंड नंदीघोष में 16 पहिए होते हैं, व्हील होते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये मैं क्यों हिंदी में बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि ये एक YouTube जो है ये सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए है। ये सब वहाँ पे भी देखते हैं, तो ये जो लड़के सब देखते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग उड़ीसा के जो जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी समझ में आता है, क्योंकि हम लोग हिंदी में मूवी देखते हैं। तो मूवी देखते देखते उड़िया से ज़्यादा हम लोग हिंदी समझते हैं, तो इसीलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, वो उड़िया समझ में उनको नहीं आता है,
तो इसीलिए मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ. सॉरी फॉर दैट. आई थिंक यू कैन एडजस्ट दिस थिंग बट दे कैन नॉट. दैट्स व्हाई आई एम माय वीडियो इज इन हिंदी लैंग्वेज. सो यू कैन से इट इंग्लिश. हिंदी एंड इंग्लिश में ये बनता है. तो देन and I am also not free in Hindi. I am not comfortable in Hindi also, but I am forced to do so. So then next question is, what is the height of the chariot of Nandighosh? नंदीघोष का जगन्नाथ महाप्रभु का जो रथ है उसका हाइट कितना है? 13.5 मीटर. The rope used to pull the chariot of Lord Jagannath is known as Shankhachuda. Shankhachuda is the rope. Then red is the common color used for 3 chariot, but the other colors used are yellow, blue and black. So these 3 colors apart from red are used in the chariot, 3 chariot. Then Garbhagriha or Garbhagruha is a book of Haraprasad Das. Then Bhitarkanika sanctuary is in which district? It is in Kendrapada district. Then we will go to 46. So 46 is like this. The author of Siddhanta Darpan was Samanta Chandrasekhar, was the author of the book Siddhanta Darpan. Then who was the president of first Utkal Sammilani? It was Ramchandra Bhanj of Mayurbhanj district. Then in which year Utkal University was formed or established? In 1943. Then Sri Ramchandra Bhanj Medical College is located in which place? It is Cuttack. Then first Odia film to get national award, it was Maya Mirigo. Maya Mirigo was the first Odia film to get national award. Then the next question is like this. The first female to get Arjun award, it was Minati Mahapatra of Odisha, got the first Arjun award from Odisha. First Odia to get Gyanpith award, it was Gopinath Mahanti for Mati Motala. किताब का नाम है माटी मोटाला. Who was known as गायको शिरोमणि, किसे कहते हैं? रघुनाथ पाणिग्राही. Then who is known as जातीय कवि? वीरकिशोर दास. प्रकृति कवि किसे कहते हैं? गंगाधर मेहर. Then the largest book of Odia, it is Purnachandra Bhasakosha. Purnachandra Bhasakosha is the largest book of Odia. Then first actress in English film, it is Jasna Devi. First Odia female pilot, it is Giribala Mahanti. P. Jayachandra, Rashmi Ranjan Parida, Devashish Mahanti, Shivsundar Das are the popular name in which field? ये नाम किस लिए प्रसिद्ध है? वो सब क्रिकेटर हैं, नेशनल क्रिकेटर. Then name the 2 Odisha cricketer who were named in the final auction of IPL 2021 but remained unsold. ऑक्शन में भाग लिए थे कौन सा 2 क्रिकेट प्लेयर? रणजी टीम्स कीपर गोविंद पोद्दार एंड शुभ्रांशु सेनापति. These 2 persons, these 2 cricket players were named in the final auction of IPL 2021 but they remained unsold. से कोई भी टीम उन दोनों को नहीं खरीदा. तो ये दोनों नाम आ सकते हैं क्योंकि सितंबर में फिर से IPL होने वाला है. नेक्स्ट प्रबोध तिर्की, इग्नेश तिर्की, माइकल किंडो, ज्योति सुनीता कुलू आर द फेमस नेम इन which sports? These names are famous in hockey, for hockey. This Renubala Mahanti and Sujata Topno are associated with athletics. Athletics के लिए उनको जाना जाता है. Then what is the percentage of Odia speaking people in Odisha? Approximately 84.11% of Odisha speak in Odia language. Then which place of Odisha is known as the second Varanasi? ये सोनपुर को कहा जाता है. Then in which year number of district of Odisha increased from 13 to 30?
तो 13 से 30 तक कब बढ़ाया गया? 93 में. So 66 number is like this. First test of Agni missile was taken place in which year? It was in 1989. Then 67 पे चलते हैं. 67 नंबर में क्वेश्चन ये दिया गया है कि सुरेंद्र साई, चाकी खुंटिया, अर्जुन सिंह आर एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट? कौन सी आंदोलन में ये लोग भाग लिए थे? सिपाही म्यूटिनी, जिसे हम उड़िया में सिपाही विद्रोह कहते हैं. देन सिपाही मीन्स सिपाही, म्यूटिनी मीन्स विद्रोह, रिबेल. देन हु फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी? इट वाज अनंग भीमदेव finished the construction. Modern Kotak was founded by whom? It was also Anang Bhimdev. Then who was the first Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir till 6th August 2020? कौन थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर? ये गिरीश चंद्र मुर्मू. उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बेतनट्टी एक जगह है, वहाँ का है ये गिरीश चंद्र मुर्मू. इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है. तो इस बार बहुत से उड़िया लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इस तरह से है. गिरीश चंद्र मुर्मू हु हेल्स फ्रॉम बेतनट्टी विलेज ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इज एट प्रेजेंट the 40th Comptroller and Auditor General of India. Comptroller and Auditor General सबसे बड़ा जो हिसाब किताब चलता है, जो अकाउंटिंग होता है, उसका जो चीफ पोस्ट है उसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं. वो ऑडिट करते हैं जो भी पैसे आते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, उसका सही खर्चा हुआ कि नहीं ये देखते हैं अकाउंटेंट जनरल. तो ये जो सबसे बड़ी पोस्ट है अकाउंटिंग का, इसका नाम है. तो ये जो इतने बड़े पोस्ट में हैं, तो इसे ये जो नाम है ये आपको जरूर याद रखना है. ये बहुत चांस से ये आ सकता है. 40th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन IAS ऑफिसर ऑफ व्हिच कैडर? कहाँ से ये IAS ऑफिसर थे? गुजरात से, गुजरात कैडर का है. 72 व्हाट इज द टेन्योर ऑफ CAG इन इंडिया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कितने दिनों तक रह सकते हैं पोस्ट पे? ये 6 साल और 65 ईयर जो आगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 साल से पहले उनका 65 साल हो जाता है तो ये रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो ये 6 साल तक रह सकते हैं. देन प्रेजेंटली गिरीश चंद्र मुर्मू इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ व्हिच ऑफ द 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये इंडिया का ऑडिटर जनरल होने के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का भी ये 2 जगहों पर ऑडिटर हैं. तो कहाँ कौन सा है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जेनीवा में, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रोम. ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में भी ये एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह काम कर रहे हैं अभी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 74 प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अश्विनी वैष्णव बिलोंग्स टू व्हिच प्लेस? ये कहाँ का है? ये उड़ीसा से राज्यसभा की सीट पर गए हैं, लेकिन वो असल में जोधपुर का, राजस्थान का है. राजस्थान में जोधपुर है, जोधपुर का ये है, बिलोंग्स टू जोधपुर. और ये बालेश्वर और कटक में कलेक्टर रह चुके हैं, तो इसीलिए इनको राज्यसभा टिकट जो है ओडिशा से दिया गया था. और अभी हाल ही में ये रेलवे मिनिस्टर भी बने हैं. उनका 2 कंपनी भी है. वो असल में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिजाइन दिया और कॉरपोरेट में ज्वाइन किए थे, कंपनी में, सीमेंस कंपनी में शायद ज्वाइन किए थे. उसके बाद वहाँ से रिजाइन देने के बाद वो खुद का कंपनी बनाए, तो फिर पॉलिटिक्स में आए. नेक्स्ट
Sabha member from which state? It is from Odisha. Ashwini Vaishnav was an IAS officer of Odisha cadre. Odisha cadre का है, वो ओडिशा में ज्वाइन किए थे. अश्विनी वैष्णव इज एसोसिएटेड विथ which two companies? जो कि गुजरात में है दो कंपनी, 3T ऑटो लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड एंड VG ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. ये दो कंपनी वो फाउंडर थे. बोथ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन गुजरात, मतलब ऑटोमोबाइल का पार्ट्स बनाता है ये दोनों कंपनी. देन हु इज एट प्रेजेंट द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन है ये? धर्मेंद्र प्रधान. देन 79 पे चलते हैं. 79 जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि धर्मेंद्र प्रधान इज ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम व्हिच प्लेस? मध्य प्रदेश से. वो राज्यसभा मेंबर मध्य प्रदेश से हैं. देन नेटिव प्लेस ऑफ श्री धर्मेंद्र प्रधान इज इन तालचेर. देन शक्तिकांत दास ऑफ ओडिशा करेंटली सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ RBI सिंस 2018. तो ओडिशा का ये भी शक्तिकांत दास जो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी गवर्नर हैं. ये 2018 से अब तक हैं. तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज द रिजर्व बैंक गवर्नर ऑफ इंडिया? देन प्रमोद कुमार मिश्रा ऑफ ओडिशा, एन IAS ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर, इज करेंटली द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द PM ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है. ये पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये. तो ये ओडिशा के ही हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा, और इनको PK मिश्रा के नाम से सब जानते हैं. देन तो 83 में क्वेश्चन में ये है कि कलिंग रत्न अवार्डी विश्वभूषण हरिचंदन इज सर्विंग एज द 23rd गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश. तो इसमें दो क्वेश्चन है. पहला ये कि विश्वभूषण हरिचंदन को ओडिशा से कौन सा अवार्ड मिला है, ये कलिंग रत्न अवार्ड. सेकंड क्वेश्चन है ये कहाँ के गवर्नर हैं, ये आंध्र प्रदेश की है. थर्ड क्वेश्चन है ये 23वां गवर्नर है, ठीक है, 23rd गवर्नर. देन 80 मरुबतास महासंग्राम और महानायक, बक्सी जगबंधु, पाइक म्यूटिनी, संघर्ष सरीनाही. दीज आर दी बुक्स, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ श्री विश्वभूषण हरिचंदन. तो ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि वो अभी हाल ही में वो आंध्र प्रदेश का गवर्नर बने हैं, तो उनका किताब पॉसिबल है कि ये आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने नेट में गूगल सर्च में जा करके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT जो बोर्ड है वो CBSE का स्कूल चला किताबें निकालते हैं, उनका डायरेक्टर जो है वो भी ओडिशा के ही हैं, ऋषिकेश सेनापति. सो दिस क्वेश्चन में भी आस्क्ड लाइक दिस, हु इज ऋषिकेश सेनापति? देन ऑप्शन में होगा ये डायरेक्टर ऑफ ये है, ऐसा करके होगा. नहीं तो हु इज एट प्रेजेंट द डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग? इट इज ऋषिकेश सेनापति. देन सो क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं. नेम द पर्सन ऑफ ओडिशा हु वाज द 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 28 अगस्त 2017 टिल 2 अक्टूबर 2018. कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन थे 17 से 18 तक? ही वाज दीपक मिश्रा. दिस क्वेश्चन आई वाज टोल्ड इन द लास्ट पेज. So this is the details of Deepak Mishra. Then under Madhubabu Pension Yojana, which category of beneficiary has been added recently? कौन सी कैटेगरी रिसेंटली ऐड किया गया है? Along with the elderly, widow and disabilities, ये तीनों को दिया जाता था पेंशन पहले अंडर मधुबाबू पेंशन योजना के अंडर. तो एल्डरली वृद्ध जो होते हैं, विडोज विधवा जो होते हैं, और डिजेबिलिटीज जो चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, उन लोगों को मिलता था. लेकिन इस बार इस हाल ही में ट्रांसजेंडर को भी ये दिया गया. ट्रांसजेंडर जो ना मेल है ना फीमेल है, देन ट्रांसजेंडर को भी अभी मिलेगा. देन आहार योजना विच वाज लॉन्च्ड इन 2015
to provide cooked hot meal to poor at low cost by which ministry? तो ये आहार योजना क्या है, वो कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने चलाया था आहार योजना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 क्वेश्चन इज लाइक दिस। नेम द पर्सन फ्रॉम ओडिशा who is the incumbent Director General of India Meteorological Department IMD, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का चीफ डायरेक्टर जनरल, ये भी ओडिशा के ही हैं। क्या नाम है उनका? मृत्युंजय महापात्र। IMD मतलब जो वेदर क्लाइमेट के बारे में जहाँ पे रिसर्च होता है वहाँ के डायरेक्टर हैं। इनकम्बेंट मीन्स अभी भी हैं। इन व्हिच मूवी राम गोपाल वर्मा ओडिया डुओ रॉक काची ऑफ बलांगीर एंड अंकिता महाराणा हु इज नेम्ड बाय राम गोपाल वर्मा एज अप्सरा रानी और हर स्क्रीन नेम इज अप्सरा रानी, प्लेइंग द लीड रोल। कौन सी फिल्म में? राम गोपाल वर्मा जी की। ये थ्रिलर मूवी है, मूवी का नाम है थ्रिलर। इसमें ओडिया हीरो का रोल जो लीड रोल जो प्ले कर रहे हैं वो रॉक काची है और फीमेल में लीडिंग रोल जो कर रहे हैं वो अप्सरा रानी है, जिनका स्क्रीन नाम है अप्सरा रानी लेकिन उनका ओरिजिनल नेम है अंकिता महाराणा। देन अंडर बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली एंड 7 लाख पर वुमेन पर एनम एज हेल्थ केयर असिस्टेंस। तो ये जो है बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस दिया जाता है। कितने रुपये तक दिया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन 94 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सर्वक्षमा योजना इज रिलेटेड टू रेगुलराइज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस इन द स्टेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। 95 नहीं है ये, सॉरी। ये क्या है? सर्वक्षमा योजना क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज सर्वक्षमा योजना? इट इज रिलेटेड टू रेगुलराइज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन से, इलीगल कंस्ट्रक्शन से, उनको रेगुलराइज करने के लिए, लीगल करने के लिए सर्वक्षमा योजना मतलब क्षमा दिया जा रहा है, सरकार की ओर से उन्हें क्षमा दिया जाएगा। तो देन उत्थान स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? इम्प्रूव एजुकेशन फॉर क्लास 6 to 8। उत्थान स्कीम में क्या दिया जाएगा? 6 से 8 तक क्लास की एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, इसलिए बना है। देन उत्कर्ष स्कीम में क्या होगा? व्हाट इज उत्कर्ष स्कीम? इट इज टू इम्प्रूव सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 10। 9-10 के लिए सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। यह है उत्कर्ष। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, नॉट टू कंफ्यूज। सो दीज क्वेश्चंस आर टू बी रीड अटेंटिवली। देन खुशी स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? व्हाई दिस खुशी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैनिटरी नैपकिन्स फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। लड़कियों को दिया जाएगा 6 से 12 क्लास तक। इन वेयर, कहाँ पे दिया जाएगा? इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, यहीं पे उनको मिलेगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। A new section named acid test, and in which we will give you homework, 10 questions as homework, and you have to find out the answers from the previous videos. And today I have given these 10 questions from 500 GK questions which was uploaded by me for the first time, and you can get this, you can find this answer from that video only. So this is this is known as acid test because जैसे सोने को ठीक से प्यूरिटी जानने के लिए एसिड टेस्ट करना पड़ता है, otherwise we cannot find out what percent of pure gold is there in an ornament. So this is known as acid test. Likewise, we have started here also acid test section है,
जिसमें अपने आप को ये टेस्ट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कल दे दीजिएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन है इस तरह से है, ये है 5 क्वेश्चंस which comet appears at the gap of this one, and then the next 5 is this, the sun is the center of the solar system, ये कौन देखे थे, क्या किए थे, एमिट ग्रीन लाइट कौन सा प्लैनेट करता है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है so far the RI exam and ASI exam and railway SSC all exams are concerned. Share my channel. So friends, I hope this video is a useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like, subscribe and share my channel.